दैट टेक्निक, अब किसी भी ऑटोप्सी में यू नो कि 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑटोप्सी. वन इज दैट, आप क्या कर रहे होते हो कि आपने बॉडी के सबसे पहले अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है. देन द डॉक्यूमेंटेशन शुड बी कंप्लीट. जब आप ऑटोप्सी देखने जाओगे, आप देखोगे कि बहुत सी ऑटोप्सीज हम इसलिए नहीं देख रहे होते, स्टार्ट नहीं हो रही होती बिकॉज पुलिस, वो कहते हैं जी पुलिस के पेपर्स नहीं आए, ठीक है. वो इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद आप जब ऑटोप्सी स्टार्ट करते हो तो यू आर गोइंग टू एग्जामिन द क्लोथ्स, ठीक है. You are going to examine the external appearance of that baby and then you are going to start by your primary incisions. जो 3 प्राइमरी इंसिजन्स हैं आपके, ओपनिंग ऑफ ऑल द बॉडी कैविटीज, वो आप करते हो, फिर आप बॉडी को ओपन करते हो. सेम वुड बी द अप्रोच इन केस ऑफ इन्फेंटिसाइड. तो सबसे पहले इसमें भी आप उसी तरह से एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, क्लोथिंग एंड रैपिंग. एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में फिर आप इन सब चीजों के ऊपर फोकस कर रहे होते हो. अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इफ, मैंने पहले भी शायद आपसे डिस्कस किया था, इन केस ऑफ अ यंग पर्सन or a person who is above 2 years of age, baby is above 2 years of age, up to any age, even 100 years, one thing is already established which you are not going to establish on autopsy. What is that? एक चीज आपको प्रूव नहीं करनी होती इन केस ऑफ नॉर्मल मर्डर जिसमें एज ज्यादा हो, जो आपको इन्फेंटिसाइड के लिए प्रूव करनी पड़ती है. शाबाश. That obviously if person is 2 years, 3 years, 5 years, 35 years of age, you knew by the history, by all the circumstances that the person was alive. But in case of these, normally जो infanticide के cases आते हैं ना, वो 1 month से भी कम होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे cases आते हैं. तो the first thing you have to establish is that the baby was alive before having that डेथ ऑफ द बेबी, ठीक है, वो आपको प्रूव करना होता है. एंड ऑन टू प्रूव दैट आपको ये सारी चीजें जो नॉर्मली आम ऑटोप्सी में आप नहीं देख रहे होते, यू हैव टू examine all these things like clothes and wrapping are important in both cases, either it's a case of a young person, old person or a baby, ठीक है. Decomposition changes are also important in both cases. Examination of body you will do. Umbilical cord is a different thing, which is obviously you are going to examine for the vital reactions and the condition of the umbilical cord. Then length and weight of the placenta, ठीक है, any evidence of the maceration and evidence of the malformation. अच्छा, अब क्लॉथ एंड रैपिंग आपको क्या आइडिया दे रहे हैं? What is the idea given by the cloth and wrapping in which the baby was? For example, if the baby is having full clothes, ठीक है, it can give you an idea कि okay baby को attend किया गया है, ठीक है, और उसकी is even in a dupatta of a female, ठीक है, तो that gives an idea कि okay इसको फौरन dispose of किया गया है, ठीक है. तो वो जो भी रैपिंग या क्लोथ है, इवन उनसे आप एज अ ट्रेस एविडेंस, if the fingerprints are there or something like that, you can have some evidence even from those clothes and wrapping. So 2 things are established, either the baby is attended properly or not, ठीक है. If a baby is properly attended, sometimes the cases can be of kidnapping, criminal or murder by some other person, because if a female or male, the parents of the baby dispose of, they do that very early before properly attending the patient, the baby, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप देख रहे होते हो decomposition changes. Decomposition changes are normally giving you 2 ideas, ठीक है. एक तो आपको क्या बता रही हैं decompositional changes? शाबाश, कि टाइम सिंस डेथ कितनी हो गई है. फिर आप ये देखना चाहोगे इसके अंदर कि these decompositional changes are basically there when the baby is out, or sometime if the stillbirth or the dead born baby is inside the uterus, the decomposition changes started inside the uterus, that is known as the maceration, ठीक है. तो उसके अंदर डिफरेंट सिनेरियो होता है, तो आप उन दोनों डिकम्पोजिशन चेंजेस से डिफरेंट देखोगे. डिकम्पोजिशन से टाइम सिंस डेथ देखोगे, और डिकम्पोजिशन भी आपको बता सकती है कि either the baby was alive or the baby was dead. Then examination of the whole body is very important, because examination जब आप कर रहे होते हो, you will start from, पहले नॉर्मल देखोगे. स्किन पे आपको पता है एक चीज होती है बेबीज की, क्या बोलते हैं उसको, वर्निक्स केजियोजा, ठीक है. इफ इट इज प्रॉपरली रिमूव्ड, इट कैन गिव यू एन आइडिया दैट बेबी वाज गिवन बाथ, ठीक है. या उसके नहीं तो अगर बेबी थोड़ा सा ओल्ड होता है तो आपको पैचेस नजर आ सकते हैं उसी वर्निक्स केजियोजा के, ठीक है. फिर आपको स्किन कलर थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा. फिर यू कैन सी कि
कैपेट आपको पता है ना, बच्चों के बन जाता है कैपेट सेकेंडम, ठीक है, दैट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एनी वॉयलेंस ऑन द हेड। फिर एनी फॉरेन बॉडी, ठीक है, कोई चोकिंग तो नहीं कराई, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं प्रेजेंट, ठीक है, बेबी के उसके अंदर। फिर आपने उसकी नेक के ऊपर देखना है कोई इस तरह का इंसिजन और कोई मार्क तो नहीं है, जिसे बोलते हैं पिथिंग, इन विच पॉइंटेड मटेरियल लाइक नीडल्स आर पास्ड through the vertebra, cervical vertebra to cause the death of the baby. So external examination for any bruise, for any other thing is very important in that case. फिर हम आगे जैसे आप देखो, अच्छा फिर उसके बाद यही सारी चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इसको आगे लेके जा रही हूँ। इंटरनल एग्जामिनेशन में जब हम देखेंगे, इसमें भी आपने कौन सी टेक्निक यूज करनी है, रॉकेटेंस्कीज, ठीक है, आपने इन सीटो जो है करनी है, बट यू आर गोइंग टू एग्जामिन ऑल द थिंग्स, ठीक है, टू नो दैट द कॉज ऑफ द डेथ, दो बातें, टू एस्टेब्लिश द एज एंड देन टू नो द कॉज ऑफ द डेथ।